Welcome to Helping Brain. Today we will discuss about miniature paintings. So miniature paintings. The word miniature is derived from Latin word minium. The word miniature is derived from Latin word minium, which means red lead paint. ठीक है, this word minium is derived from Latin word minium, which means red lead paint, and this red lead paint was used during the time period of Renaissance to illuminate the various manuscripts. Okay, the word miniature is derived from Latin word minium, which means red lead paint. So what are miniature paintings? Miniature paintings are small size handmade paintings. What are miniature paintings? They are the small size detail paintings. These paintings developed in the 9th and 11th century as a reaction towards the wall paintings, that is म्यूराल पेंटिंग्स. हमने पहले पढ़ा था म्यूराल पेंटिंग्स. वॉल पेंटिंग्स को हम क्या बोलते थे? जो बिगर साइज़ की होती थी उनको हम बोलते थे म्यूराल पेंटिंग्स. तो मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है? ये स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती हैं. दे आर वेरी डिटेल पेंटिंग्स. दीज पेंटिंग्स डेवलप्ड इन द 9th and 11th century एज अ रिएक्शन टूवर्ड्स दी वॉल पेंटिंग्स, दैट इज़ म्यूराल पेंटिंग्स. दो प्री कंडीशंस होती है मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाने के लिए. पहली कंडीशन होती है द मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए मिनिएचर पेंटिंग्स का? 25 स्क्वायर इंच. द मैक्सिमम साइज ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग शुड बी 25 स्क्वायर इंच. और सेकेंड प्री कंडीशन क्या होती है? जो सब्जेक्ट है पेंटिंग का, इट शुड नॉट बी मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज. मतलब जो हम सब्जेक्ट पेंटिंग में बना रहे हैं वो एक्चुअल साइज से 1/6 ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. व्हाट आर मिनिएचर पेंटिंग्स? दे आर द स्मॉल साइज डिटेल पेंटिंग. These painting developed in the 9th and 11th century as a reaction towards the wall paintings. Now miniature schools in India. The first school is Pala school. Who were the Palas? The Palas ruled in the Bengal and Bihar region. Okay, who were the Palas? They ruled in the Bengal and Bihar region, and these Palas usually patronized this school. Okay. Second important thing here is the subject of these painting is related to Buddhism. The subject of these painting, that is Pala school of painting, subject is usually related to Buddhism. For example, related to Lord Buddha or Bodhisattva and other character from the Buddhist literature. Okay, so Palas usually patronize this school, and the theme of this school revolved around Buddhism. Some important features of this Pala school of painting is flat lines, sinuous finishing lines, and usually alone figures are drawn. Okay, you can see in this picture alone figures are drawn. And one more important thing here is these paintings are usually executed on palm leaves. Okay, these paintings are usually executed on palm leaves, vellum paper. Okay, these paintings are usually executed on palm leaf or vellum paper. ठीक है. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th century, Buddhist monasteries were destroyed at the hands of the Muslim invader, which led to the end of the Pala school of miniature painting. क्या होता है 13th century में मुस्लिम इन्वेडर्स के आने के साथ क्या होता है? जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं दे वर डिस्ट्रॉयड. तो अब हमें पता है पाला स्कूल जो है वो मोस्टली रिलेटेड है बुद्धिज़्म, तो उसके साथ ही क्या होता है पाला स्कूल का भी डिक्लाइन होता है. सेकेंड इज जैन मिनिएचर पेंटिंग्स. इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है जैन मिनिएचर पेंटिंग्स की? स्टाइलिश फिगर्स ऑफ वुमन, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड प्योर कलर, हैवी गोल्ड मेटल्स. ठीक है. जैन मिनिएचर पेंटिंग के फीचर्स क्या है? स्टाइलिश फिगर्स ऑफ वुमन मोस्टली डिपिक्ट की गई हैं, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड प्योर कलर, हैवी गोल्ड आउटलाइन. सेकेंड चीज़ क्या है? हम आगे जाके पढ़ेंगे राजस्थानी एंड मुग़ल पेंटिंग. ये जो राजस्थानी और मुग़ल पेंटिंग्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जैन पेंटिंग्स का. ठीक है. थर्ड इज अपर ब्रह्मसा स्कूल. अपर ब्रह्मसा कुछ नहीं, अपर ब्रह्मसा क्या है? दे आर द काउंटर पार्ट ऑफ द पालाज इन वेस्टर्न इंडिया, मोस्टली इन द मेवाड़ एंड गुजरात रीजन. तो अपर ब्रह्मसा स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है? अपर ब्रह्मसा स्कूल ऑफ पेंटिंग कुछ नहीं है, ये काउंटर पार्ट है पालाज का इन द वेस्टर्न इंडिया, मोस्टली इन द मेवाड़ एंड द गुजरात रीजन. ये इनिशली ये पेंटिंग्स कहाँ पे हम करते थे? पाम लीव्स पे, बट लेटर ऑन कहाँ शिफ्ट हो गया? दे वर शिफ्टेड टूवर्ड्स द पेपर. ठीक है. इनिशली अपर ब्रह्मसा पेंटिंग वर डन ऑन पाम लीव्स, लेटर ऑन इन लेटर स्टेजेस वी शिफ्टेड टूवर्ड्स द पेपर.
कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे कि नेचुरल सीन्स एब्सेंट होंगे, बल्जिंग आइज, जैसे आप इस पेंटिंग में देख लो, ठीक है, बल्जिंग आइज हैं, एंगुलर फेसेस हैं, डेकोरेटेड मार्जिन्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अपर ब्रह्मस स्कूल ऑफ पेंटिंग के। क्या क्या है? लैक ऑफ नेचुरल सीन्स, बल्जिंग आइज, एंगुलर फेसेस एंड डेकोरेटेड मार्जिन्स। Now miniature during the Mughal era. Now we will discuss miniature during the Mughal era. अगर हम मुग़ल एरा की बात करें तो मुग़ल डायनेस्टी कैसे आती है? मुग़ल डायनेस्टी हमें पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ठीक है। मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है बाबर से, देन उसके बाद आते हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। अगर मुग़ल पेंटिंग्स की बात करें तो मुग़ल पेंटिंग्स में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पर्शियन इन्फ्लुएंस मिलता है पेंटिंग में, ठीक है। मुग़ल पेंटिंग्स में हमें क्या मिलता है? पर्शियन इन्फ्लुएंस मिलता है। और सेकेंड चीज़ क्या है कि जो थीम है, थीम बोले या फोकस शिफ्ट हो जाता है। मुग़ल एरा पेंटिंग में फोकस शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि अर्लियर पेंटिंग्स में क्या किया जाता था? गॉड को ग्लोरीफाई किया गया है, ठीक है। अर्लियर पेंटिंग्स जैसे पालाज में हमने पढ़ा बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, देन जैन पेंटिंग्स थी, उसके पहले अपनी म्यूरल पेंटिंग्स भी देखी वेरियस, तो उसमें क्या था? गॉड पे फोकस किया गया। बट इन मुग़ल एरा द रूलर इज़ ग्लोरीफाइड, ठीक है, रूलर्स को ग्लोरीफाई किया गया। उसके अलावा हंटिंग सीन्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड अदर कोर्ट सीन्स वर मोस्टली फोकस्ड। ओके, सो मिनिएचर पेंटिंग्स ड्यूरिंग मुग़ल एरा में क्या हुआ? मुग़ल एरा में पेंटिंग्स में क्या आना स्टार्ट हो गया? पर्शियन इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो गया, और जो फोकस था पेंटिंग का वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द रूलर। ओके, इसमें क्या किया गया? रूलर को ग्लोरीफाई किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बाबर के टाइम पीरियड पे कुछ इतना इम्पॉर्टेंट हुआ नहीं। बाबर के टाइम पीरियड पे सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाबर की एक कोर्ट में एक आर्टिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं बिजाद। ओके, यहाँ मैं लिख रही हूँ बिजाद, ठीक है। बाबर क्या पैट्रोनाइज करते थे? बाबर पैट्रोनाइज करते थे एक आर्टिस्ट को, पर्शियन आर्टिस्ट को, बिजाद को, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने इलिस्ट्रेट किया मुग़ल फैमिली ट्री को। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बाबर ने कुछ इतना इम्पॉर्टेंट किया नहीं पेंटिंग से रिलेटेड, बट बस एक ही चीज़ है कि बिजाद को वो क्या करते थे? पैट्रोनाइज करते थे, जिन्होंने मुग़ल फैमिली ट्री को इलिस्ट्रेट किया। उसके अलावा हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का भी कुछ नेग्लिजिबल ही है पेंटिंग से रिलेटेड। जो रियल सेंस पेंटिंग में आती है वो अकबर के टाइम पीरियड पे आती है, ठीक है। हम पढ़ते हैं वन बाय वन। ठीक है, द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग originated during the rule of the Mughal Emperor Akbar, who was deeply interested in the art of painting and architect। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुग़ल पेंटिंग्स कहाँ से इस्टेब्लिश हुई, मतलब मोस्टली इस्टेब्लिश हुई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग हैज़ मेटरलाइज फ्रॉम द पर्शियन मिनिएचर। बताया मैंने आपको, पर्शियन इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अटेंशन वॉज टूवर्ड्स द रूलर, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। डिस्प्लेइंग हिज लाइफ रेदर देन पोर्ट्रेइंग द गॉड, मैंने आपको बताया फोकस शिफ्ट हो गया फ्रॉम गॉड टूवर्ड्स द रूलर। देन कोर्ट इवेंट्स, हंटिंग सीन, हिस्टोरिकल इवेंट्स वर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द मुगल एरा। हम एक और बार देखते हैं मुगल एरा पेंटिंग में। जो मुगल एरा पेंटिंग है ये ओरिजिनेट होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? मुगल पेंटिंग्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड थिंग क्या है कि इसमें क्या है? रूलर को ग्लोरीफाई किया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या दिखाए गए हैं? कोर्ट इवेंट्स, हंटिंग सीन, हिस्टोरिकल इवेंट्स वर द मेन सब्जेक्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द मुगल एरा। अब अकबर की बात करते हैं। तो अकबर ही इस्टेब्लिश एन इंटायर डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पेंटिंग एंड दैट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज तस्वीर खाना। अकबर ने एक पूरा इंटायर डिपार्टमेंट बना दिया पेंटिंग से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं तस्वीर खाना।
ओके, अकबर ने एक इंटायर डिपार्टमेंट बना दिया जिसको हम बोलते हैं तस्वीर खाना। और अकबर क्या करते थे, अकबर रेगुलरली गेव अवार्ड टू दोज पेंटर हु क्रिएटेड लाइफ लाइक इमेजेस। तो अकबर क्या करते थे, ये अवार्ड देते थे उन पेंटर्स को जो रियल लाइफ लाइक इमेजेस बनाते थे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई अकबर के टाइम पीरियड पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकबर के टाइम पीरियड पे कैलीग्राफी आना स्टार्ट हुई एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स इन दी पेंटिंग्स वर मच प्रेवलेंट। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या आ गए अकबर की पेंटिंग के टाइम पीरियड पे, कि कैलीग्राफी एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स वर मोस्टली प्रेवलेंट। एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है अकबर के टाइम पीरियड पे, दैट इज़ तूतीनामा। ठीक है, एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है अकबर के टाइम पीरियड पे, तूतीनामा, दैट इज़ टेल्स ऑफ पैरट। इट इज़ रिटन बाय अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली। तो तूतीनामा किसने, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, तूतीनामा किसने लिखा है, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद ने। तूतीनामा क्या है, तूतीनामा को हम बिलीव करते हैं शोज मुगल स्टाइल इन सॉरी ठीक है, तूतीनामा किसने लिखा है, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद ने। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स की बात करें ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, दे आर मीर सैयद अली, अब्दुल समाद की बात कर ली हमने। उसके अलावा दसवंत, बासवान एंड केसू। तो अकबर के टाइम पीरियड की बात करें, अकबर के टाइम पीरियड पे मोस्टली प्रिवलेंट क्या चीज़ें थी पेंटिंग में, कैलीग्राफी, 3 डायमेंशनल फिगर्स, और उसके अलावा तूतीनामा जो है अकबर के टाइम पीरियड पे लिखा गया, इट इज़ रिटन बाय मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। अब सेकेंड इज जहांगीर। जहांगीर जो थे वो ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है, जहांगीर हिमसेल्फ वॉज ग्रेट आर्टिस्ट। जहांगीर की कुछ पेंटिंग्स हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। जहांगीर ने खुद पेंटिंग्स बनाई, जैबरा पेंटिंग, कॉक पेंटिंग, देन टर्की पेंटिंग। ये 3 पेंटिंग्स जहांगीर ने खुद बनाई। जहांगीर हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पेंटर। जहांगीर ने जैबरा पेंटिंग, कॉक पेंटिंग और टर्की पेंटिंग बनाई। Jahangir was exceptionally great patron of painting, and during his reign मुगल पेंटिंग रीच एट इट्स पीक। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड पे मुगल पेंटिंग अपनी पीक पे स्टार्ट की। मुगल पेंटिंग का जो ओरिजिन है हम बिलीव करते हैं अकबर के टाइम पीरियड पे, बट पेंटिंग जो है अपनी पीक पे कब आई, जहांगीर के टाइम पीरियड पे। जहांगीर की पेंटिंग में नेचुरलिस्ट एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जहांगीर की पेंटिंग कैसी है, नेचुरलिस्ट बाय नेचर, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसे कि जहांगीर की पेंटिंग्स पे आप मोस्टली देखोगे फ्लोरा होगा, फौना होगा। ठीक है, फ्लोरा फौना, दैट इज़ प्लांट एनिमल्स आप मोस्टली देखोगे। यहाँ देख लो आपने जैबरा पेंटिंग बनाई, कॉक पेंटिंग बनाई, तो नेचुरलिस्ट एलिमेंट ज़्यादा हैं जहांगीर की पेंटिंग्स में। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि डेकोरेटेड मार्जिन्स हैं। ठीक है, सबड्यूडेड कलर्स यूज़ किए हैं जहांगीर ने। जहांगीर की पेंटिंग में यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी हम देख सकते हैं। जहांगीर वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड इनकरेज हिज पेंटर टू फोकस ऑन सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव एज वॉज डन बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट। तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी आना स्टार्ट हो गया जहांगीर के टाइम पीरियड पे। तो जहांगीर ने अपने पेंटर्स को इनकरेज किया टू फोकस ऑन सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव एज वॉज डन बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट था, बहुत सारे हैं, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिसानन, बट उस सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिस्ट है जहांगीर के टाइम पीरियड पे वो कौन है, उस्ताद मंसूर। शाहजहाँ की पेंटिंग की बात करें तो शाहजहाँ की अगर हम बात करें, शाहजहाँ ने मोस्टली आर्किटेक्ट पे फोकस किया है रेदर देन पेंटिंग। उसके अलावा शाहजहाँ की पेंटिंग में भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, शाहजहाँ की पेंटिंग में भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, बट आर्टिफिशियल, अनलाइक जहांगीर यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। शाहजहाँ की पेंटिंग में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ज़्यादा, मतलब उन्होंने लाइफनेस रिड्यूस कर दी अपनी पेंटिंग में। ठीक है, थीम्स ऑफ मतलब शाहजहाँ के टाइम पीरियड की थीम्स कैसे, जैसे कि टेरेस गार्डन, म्यूजिकल पार्टीज, लवर्स एंड समटाइम इवन द इंटीमेट पोजीशन। शाहजहाँ वांटेड इंक्रीज यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर। शाहजहाँ ने मोस्टली किस कलर का यूज़ किया है, गोल्ड एंड सिल्वर कलर का। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई
He avoided the use of charcoal to draw and motivated the artist to draw and sketch with the help of pencil. तो आप देखो sketch यहाँ पे आना start हो गया, sketch with the help of pencil. तो pencil का यूज़ शाहजहाँ ने अपनी पेंटर्स को मोटिवेट किया to sketch the painting with the help of pencil. औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में मुग़ल पेंटिंग्स डिक्लाइन हो गई, मुग़ल पेंटिंग्स का जो है एंड हो गया, शार्प डिक्लाइन आ गया, ठीक है, शार्प डिक्लाइन आ गया मुग़ल पेंटिंग्स का औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे, क्योंकि औरंगज़ेब जो थे ही डिड नॉट सपोर्ट द पेंटिंग. तो जो पेंटिंग्स की, मुग़ल पेंटिंग्स की बात करें तो ओरिजिनेट होती हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर. मुग़ल पेंटिंग ओरिजिनेट एट द टाइम पीरियड ऑफ अकबर. इट रीच एट इट्स पीक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर एंड शार्प डिक्लाइन आ गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगज़ेब. ठीक है, अब हम बात करेंगे राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग. हम राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग को राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बोलते हैं. ठीक है, अगर राजपूत स्टाइल की बात करें या राजस्थान पेंटिंग की बात करें तो इट इज़ वन थिंग. तो दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग. और इस पेंटिंग की थीम क्या है? इंडियन हिंदू ट्रेडिशन. ठीक है, इंडियन हिंदू ट्रेडिशन से, जैसे कि बात करें इंडियन हिंदू ट्रेडिशन, जैसे कि रामायण आ गया, महाभारत आ गया. ठीक है, तो थीम क्या है इस पेंटिंग की? हिंदू महाभारत ट्रेडिशंस. जैसे हिंदू टेक्स्ट हैं ये, है ना, हिंदू टेक्स्ट पे मोस्टली ये इन्फ्लुएंस कहाँ से है? हिंदू टेक्स्ट से. और इस पर मुग़ल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा देखा गया. तो राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, द स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन राजस्थान अराउंड द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी एंड हैड मुग़ल इन्फ्लुएंस. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, राजपूत पेंटिंग में भी मुग़ल इन्फ्लुएंस है. और मोस्टली किस पे बेस्ड है ये? हिंदू टेक्स्ट पे, जैसे कि रामायण, महाभारत. उसके अलावा नेचुरल लैंडस्केप, ह्यूमन बींग्स पे भी ये बेस्ड है. द कलर वर ड्राइड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, मिनरल्स, गोल्ड एंड सिल्वर. पहली आ गई मारवाड़ पेंटिंग्स. ठीक है, राजपूत पेंटिंग में पहली आ गई मारवाड़ पेंटिंग्स. दे आर पैट्रोनाइज बाय द राठौर किंग्स, नोन फॉर कलरफुल क्लोथिंग. सेंट्रल थीम इज रागामाला सीरीज. ये रागामाला सीरीज क्या है? ये म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड है. ठीक है, दिस रागामाला सीरीज इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स. तो जो मारवाड़ पेंटिंग है इसकी सेंट्रल थीम है रागामाला सीरीज. मान सिंह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस पेंटिंग. मान सिंह जो थे, मान सिंह किसके टाइम पीरियड पे बिलोंग करते थे? अकबर. ही वॉज वन ऑफ द जेम ऑफ अकबर. तो मान सिंह जो है वो पैट्रोनाइज करते थे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. देन आमेर एंड जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग. दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग हैज़ स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस. जो आमेर और जयपुर पेंटिंग है इस पर क्या है? मुगल इन्फ्लुएंस है. आमेर की बात करें, आमेर जो कैपिटल, आमेर स्टेट थी उसकी कैपिटल थी आमेर. लेटर ऑन इट इज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स जयपुर. देन बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग. ठीक है, बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग. बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, हडोती. ठीक है, हडोती. हडोती क्या है? हडोती हम बुंडी और कोटा को मिला के बोलते हैं. बुंडी प्लस कोटा इज़ नोन एज हडोती. ठीक है, जो ये दोनों सिस्टर स्टेट है, बुंडी एंड कोटा. ठीक है, क्या हुआ, जो ओल्डर बुंडी किंगडम था ये स्प्लिट होके बना इनटू बुंडी एंड कोटा. और ये जो यहाँ के जो रूलर्स थे इन पे मोस्टली किसका इन्फ्लुएंस था? कृष्ण भक्ति का इन्फ्लुएंस था. तो अगर हम बात करें बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग या कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग की, तो इट रिवॉल्व अराउंड कृष्ण भक्ति. और मतलब इस पे भी रिलीजियस मोटिव आना स्टार्ट हो गया. उसके अलावा यहाँ पे लोकल वेजिटेशंस हम यूज़ करते हैं. ठीक है, बुंडी द पेंटिंग्स इन बुंडी स्टार्टेड इन द अर्ली एज इन 1625 AD एंड द पेंटिंग शो बारवाई रागनी इन इलाहाबाद म्यूजियम. ठीक है, ये इलाहाबाद म्यूजियम में भैरावी रागनी है, ये एक बुंडी पेंटिंग है. इस पर भी मुगल इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन दिस पेंटिंग. द स्कूल ऑफ पेंटिंग अपोजिट लास्ट
फिफ्थ हमारा क्या है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, द स्कूल ऑफ पेंटिंग अपोजिंग टू अदर राजपूत पेंटिंग फोकस अपॉन द कंजर्वेटिव स्टाइल एंड ट्राई टू अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल। तो ये जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, ये अवॉइड करता है इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल। इस पे भी क्या है, रागमाला सीरीज़ का इम्पैक्ट आप देखोगे, ठीक है। ऑल्सो नोन फॉर रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग, द मेवाड़ वॉज नोन फॉर द लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल्स। तो मेवाड़ जो रीजन था, इसका क्या हिस्ट्री है, दे स्ट्रांगली अपोज मुगल्स। तो उस इसलिए जो इस पेंटिंग्स में हम क्या देखते हैं, अवॉइड हम देखते हैं इस पेंटिंग में हम क्या देखते हैं, दे अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स। मेवाड़ की बात करें, अगर मेवाड़ किंगडम की बात करें, इसकी दो कैपिटल है, रणथंभौर। मेवाड़ की दो कैपिटल्स थी उस टाइम पे, रणथंभौर एंड चित्तौर। यहाँ लिख रही हूँ मैं चित्तौर। मेवाड़ की दो कैपिटल थी उस टाइम पीरियड पे, रणथंभौर एंड चित्तौर। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग, मालवा वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मालवा जो है वो मोस्ट कंजर्वेटिव राजपूत पेंटिंग है एंड वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द चोरा पच्चिका स्टाइल, ठीक है। किशनगढ़ पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि किशनगढ़ इज़ नोन फॉर बनी ठनी पेंटिंग। ये बहुत टाइम पेपर में पूछा गया है कि बनी ठनी पेंटिंग जो है वो कौन से स्कूल को बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई, बनी ठनी पेंटिंग वॉज मेड बाय सावंत सिंह, ठीक है। बनी ठनी पेंटिंग वॉज मेड बाय सावंत सिंह। कुछ बिलीव करते थे ये बनी ठनी कौन थी, ये बनी ठनी शी वॉज द बीलव्ड ऑफ सावंत सिंह, जिसकी पेंटिंग इन्होंने बनाई। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ये बनी ठनी जो थी ये राधा थी, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बनी ठनी राधा थी एंड सावंत सिंह वाज कृष्ण, बट ऐसा है नहीं। बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी वॉज अ बीलव्ड ऑफ सावंत सिंह। ये देख लो आप, ये कृष्ण राधा की तरह लग रहा है। तो इन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग अ फ्यूजन ऑफ मुगल एंड रिलीजियस स्टाइल कैन बी सीन, ठीक है। मुगल एंड रिलीजियस स्टाइल का फ्यूजन है ये किशनगढ़ पेंटिंग। लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण यूज टू बी सेंट्रल थीम ऑफ स्टाइल, ठीक है। राधा एंड कृष्ण का लव दिखाया गया इस पेंटिंग में। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है यहाँ पे बनी ठनी, कुछ लोग बिलीव करते हैं बनी ठनी वॉज राधा। देन फॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, फॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया की बात करें किस पे बेस्ड है, ये फॉक टेल्स, नेटिव हीरोज पेंटिंग्स पे बिलीव है, बेस्ड है, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली आ जाती है हमारी मधुबनी पेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग्स को, मधुबनी पेंटिंग को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग आर मेनली प्रेजेंट इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। कहाँ प्रेजेंट है ये, बिहार में, ठीक है। ट्रेडिशनली कौन करता था इसको, ट्रेडिशनली वुमेंस करती थी। ट्रेडिशनली दिस पेंटिंग वॉज डन बाय वुमेंस ऑफ मधुबनी टाउन, ठीक है। बट अब लेटर ऑन जो है वो मैन भी करते हैं, बट इनिशियली कौन करता था, ट्रेडिशनली वुमेंस करती थी। और ये किस पे बेस्ड है, ये रिलीजियस मोटिव्स पे बेस्ड है, ठीक है। रिलीजियस मोटिव्स पे बेस्ड है। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि सिंबॉलिक होती है। मधुबनी पेंटिंग इज सिंबॉलिक, मधुबनी पेंटिंग इज सिंबॉलिक, ठीक है। अगर बात करें हम फिश की, तो फिश यहाँ क्या डिपिक्ट करती है, गुड लक एंड फर्टिलिटी। मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें अगर हम, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डबल लाइन बॉर्डर। अभी इस पेंटिंग में देख लो डबल लाइन बॉर्डर है, उसके अलावा 2 डायमेंशनल है ये, ठीक है। 2D फिगर है इसमें एंड यहाँ आप लिख लेना इसको, ये डबल लाइन बॉर्डर है, ठीक है। डबल लाइन बॉर्डर, देन 2 डायमेंशनल फिगर्स। दिस इज मधुबनी। थीम ऑफ दिस पेंटिंग आर हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, मिथोलॉजी, वेडिंग सीन। वेडिंग सीन किसका, वेडिंग सीन यहाँ ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो मिथिला किंग थे उन्होंने ऑर्डर किया था मधुबनी पेंटिंग को ड्रॉ करने का ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ राम एंड सीता,
ठीक है, जब राम और सीता की शादी हुई थी तब मिथिला किंग ने ऑर्डर किया था टू मेक मधुबनी पेंटिंग। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिलीजियस मोटिव्स पे बेस्ड होती है ये, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, मिथोलॉजी, वेडिंग सीन, फेस्टिवल सीन एंड ऑल्सो अब लेटर ऑन ये रॉयल कोर्ट्स में भी बनाए जाने लगी। दीज पेंटिंग्स आर एक्सक्लूसिवली मेड बाय वुमन पेंटर्स। तो कौन बनाता है इन पेंटिंग्स को? ट्रेडिशनली कौन बनाता था? वुमन पेंटर्स। बिफोर 1967 दे ओनली मेक म्यूरल पेंटिंग, बट आफ्टर 1967 दे ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग फॉर इकोनॉमिकल पर्पस। 1967 से पहले ही जो थी म्यूरल पेंटिंग्स के लिए यूज़ होने, एज अ म्यूरल पेंटिंग्स थी, मतलब लार्ज साइज पेंटिंग बनाते थे। बट 1967 के बाद फॉर इकोनॉमिक पर्पस हमने उसको स्मॉल साइज पे भी बनाना स्टार्ट कर दिया। यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर क्या है इस पेंटिंग्स का? दीज पेंटिंग्स आर आउटलाइन डायरेक्टली ड्रॉन विद ब्रश विदाउट एनी प्रीलिमिनरी स्केचिंग। मतलब डायरेक्टली ब्रश से बनाया जाती है मधुबनी पेंटिंग, कोई स्केचिंग नहीं की जाती है, डायरेक्टली ब्रश से बनाई जाती है। इन मधुबनी स्टाइल देयर आर मेनली 2D फिगर्स। 2D फिगर्स होती हैं। दे ऑल्सो यूजेस सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैंने आपको बताया सिम्बॉलिक पेंटिंग्स होती है ये। ऑल्सो द यूज़ ऑफ कलरफुल राइसेस प्रिवेल हेयर। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या आ गई मधुबनी पेंटिंग की? ये डायरेक्टली ड्रॉ की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, 2D फिगर है, सिम्बॉलिक है। ठीक है, देन वर्ली पेंटिंग। सेकेंड इज वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र एंड गुजरात। वर्ली इज एन एरिया बिटवीन द महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन। ठीक है, वर्ली पेंटिंग बनाई जाती है महाराष्ट्र प्लस गुजरात के रीजन्स पे। दे यूज़ काउडंग फॉर बैकग्राउंड प्लास्टर। बैकग्राउंड प्लास्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं? बैकग्राउंड के लिए दे यूज़ काउडंग। इन दिस पेंटिंग वाइट कलर पेस्ट यूज टू ड्रॉ फिगर्स। आप इस पेंटिंग में देख लो, वाइट कलर की पेस्ट यूज होती है टू ड्रॉ द फिगर्स। मेल एंड फीमेल फिगर्स आर ड्रॉन इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। देन बाज़ार पेंटिंग। अगर बाज़ार पेंटिंग की बात करें तो बाज़ार पेंटिंग क्या दिखाएगी? नाम से ही पता चल रहा है ये बाज़ार के एवरीडे बाज़ार सीन्स को डिपिक्ट करती है और इस पर यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बाज़ार पेंटिंग्स आर नेटिव ऑफ बंगाल रीजन। यूरोपियन इन्फ्लुएंस कैन बी फाइंड इन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिकॉज the figures of Roman and Greek are copied here. Everyday bazaar scenes are also the everyday bazaar scene and also the female dancer which are dancing in front of British officers are the theme of bazaar painting. तो थीम क्या है इस पेंटिंग की? थीम है एवरीडे बाजार सीन्स एंड फीमेल डांसर्स। गॉन्ड आर्ट पेंटिंग। गॉन्ड आर्ट पेंटिंग क्या है? ये एक ट्राइबल पेंटिंग है। गॉन्ड आर्ट पेंटिंग इज अ ट्राइबल पेंटिंग। तो अगर ट्राइबल पेंटिंग है तो इसकी थीम क्या होगी? थीम होगी इसकी हिल्स, स्ट्रीम्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो गॉन्ड आर्ट पेंटिंग कंसिस्ट लाइफ एज अ सेंट्रल थीम ऑफ द आर्ट। इट इज़ प्रैक्टिस बाय गोंडी ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। द आर्ट फॉर्म सेलिब्रेट लाइफ दैट इज हिल्स, स्ट्रीम्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग क्या है? ये भी एक ट्राइबल पेंटिंग है। गॉन्ड पेंटिंग भी ट्राइबल पेंटिंग है और पिथोरा भी ट्राइबल पेंटिंग है। They are practiced by the tribes of ठीक है, they are practiced by the tribes of central Gujarat. These are found on the walls of houses and believed to bring peace, prosperity and happiness to the household. तो पिथोरा पेंटिंग्स कहाँ बनाई जाती है? ये हाउसेस की वॉल्स पे बनाई जाती है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि पिथोरा पेंटिंग बनाने से क्या आता है? लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस आती है। दीज पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड मोर ऑफ अ रिचुअल देन अ आर्ट फ्रॉम द प्लीड ऑफ अ गुड फॉर अ बून्स। ठीक है, मोस्टली क्या बिलीव किया जाता है? ये एक रिचुअल है। हर घर में पिथोरा पेंटिंग बनाई जाती है एज अ रिचुअल। द वॉल आर ग्रेट ट्रीट विद द डबल लेयर ऑफ काउ डंग एंड अ लेयर ऑफ चॉक पाउडर बिफोर पेंटिंग्स।